cheerful good morning children. Myself Sarita Chaudhary, TGT science teacher from St. Joseph Public School Town. Children, in a previous video, we started chapter number 1 of science, which is nutrition in plants. In previous video, we discussed what the heterotrophic mode of nutrition is, what are the various types of heterotrophic mode of nutrition. In today's video, we are going to start the new topic, which is replenishment of nutrients in the soil. Children, plants, they absorb water, mineral and nutrients from the soil. लगातार वो absorb करते रहते हैं. And on doing so, after some time, the amount of these nutrients, basically plants कौन कौन से nutrients use करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये nutrients plants को बहुत ज़्यादा required होते हैं for their proper growth. So they will keep on absorbing these nutrients from the soil for their growth, and after some time the amount of these nutrients will decline in the soil. उनकी अमाउंट कम हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की. और एक बार सॉइल के अंदर इफ़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैज़ बीन रिमूव्ड, बिल्कुल गायब हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, देन दैट लैंड टर्न्स इनटू द बैरन लैंड. उस लैंड के अंदर बिल्कुल भी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा. Not even any plant will keep on growing on that land, on that soil. So farmers, they need to enrich the soil with these nutrients time to time. Farmers को क्या करना पड़ेगा? Time to time soil के अंदर nutrients को add करना पड़ता है. We can easily sow seeds in the soil, right? And they can germinate. But for their proper growth, for their proper healthiness, we need to maintain their nutrient requirement of those plants. There are different methods by which the farmers, they enrich the soil with the nutrients, जिनसे वो soil की जो nutrient की requirement है उसको वो fulfill करते हैं. We can categorize these methods into two categories. Children, these are artificial methods and natural methods. Artificial methods के अंदर क्या कर रहे हैं? Manually, either they will add the fertilizers and manures in the soil, उनको वो add करेंगे soil के अंदर. अब fertilizers क्या हैं? Fertilizers are the chemical substances and manures are the biodegradable substances. Those are being prepared by the plants and animals waste materials. बट मैन्यूर्स अगर हम यूज़ करें सॉइल के अंदर, दैट इज़ ओके, हेल्दी है वो. बट फर्टिलाइजर्स तो केमिकल सब्सटेंसेस हैं. फर्दर दे कैन एनरिच द केमिकल्स इन द सॉइल. तो सॉइल के अंदर जो है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है. सॉइल के लिए वो अच्छा नहीं है ज़्यादा अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं. तो इज़ देयर एनी अदर मेथड बाय विच द फार्मर्स कैन enrich the nutrients in the soil? That we are going to study in the next category, and that is children natural method. अब natural method के अंदर we are going to study a process which is termed as nitrogen fixation. क्या होता है nitrogen fixation? Children, air is the composition. It is the composition of different gases, dust particles and water vapors. एयर के अंदर मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1% अदर गैसेस प्रेजेंट रहती हैं. बीइंग 78% इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, स्टिल प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ इट. वो सीधा उसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकती. प्लांट्स में कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको सीधा यूज़ कर सकें. तो उसके लिए नेचर के अंदर एक बैक्टीरिया है. दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज राइजोबियम बैक्टीरिया. इट इज़ द राइजोबियम बैक्टीरिया. This bacteria has the capacity to utilize the free atmospheric nitrogen. वो उसको यूज़ कर सकते हैं. How they do so? कैसे करते हैं वो इस चीज़ को? Now these rhizobium bacteria, they are generally found in the roots of leguminous plants. अब एक टर्म आ रही है यहाँ पे लेग्यूमिनस. व्हाट आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स? जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं ना चिल्ड्रन, ग्राम है, पीज है,
तो जितने भी ये पल्सेस वाले होंगे, मूंग है, इन प्लांट्स की कैटेगरी होती है साइंस के अंदर, दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज द लेग्यूमिनस कैटेगरी। तो लेग्यूमिनस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की रूट्स के अंदर सम नोड्यूल, छोटे छोटे बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स, दे आर टर्म्ड एज रूट नोड्यूल्स। रूट्स के अंदर बल्ब जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल नोड जैसे स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। नाउ दीज राइजोबियम बैक्टीरिया दे लिव इन दीज रूट नोड्यूल्स, वो इनके अंदर रहते हैं। एंड what they do, they absorb the atmospheric nitrogen, वो उसको absorb करेंगे and will convert that nitrogen into some water soluble simple form and fix that nitrogen in that form in the soil। इन्होंने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया, उसको वाटर सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन की कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर दिया, फ्रॉम वेयर प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजन कंपाउंड, प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को। नाउ स्टूडेंट्स, राइजोबियम बैक्टीरिया दिस ये जो प्रोसेस पूरा शो किया ना, अभी डिस्कस किया हमने, दैट राइजोबियम बैक्टीरियाज दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। This process is termed as nitrogen fixation. So majorly all the green plants, they require the nitrogen for their proper growth and proper healthiness. उनको requirement होती है इस चीज़ की, तो हमने process discuss कर लिया यहाँ पे nitrogen fixation. Children, in a previous video we studied about the symbiotic association. हमने symbiosis mode of heterotrophic mode of nutrition study किया था। If you remember that, क्या था symbiosis? It was the association of two different organisms living together to provide food and shelter to each other. दो अगर ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और वो एक दूसरे की न्यूट्रिएंट्स की, फूड की, शेल्टर की, वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये जो राइजोबियम हमने डिस्कस किया था, एग्जांपल ऑफ लाइकेन, इफ़ यू रिमेंबर, लाइकेन के अंदर दो पार्टनर्स थे, वन वाज द एल्गा, सेकंड वाज द फंगस, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे थे, राइट। सो यहाँ पे ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इट ऑल्सो शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हाउ, कैसे शो करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करवा रहा है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, सो दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड प्रॉपरली, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना प्रॉपरली, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी तो प्रॉपर ग्रोथ होगी प्लांट की, तभी तो वो फूड फॉर्मेशन कर पाएंगे प्रॉपरली। सो दीज राइजोबियम बैक्टीरिया दे आर हेल्पिंग द लेग्यूमिनस प्लांट्स टू मेक देयर फूड, उनको फूड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बट ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपने लिए वो खाना नहीं बना सकते, तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर लिविंग इन द रूट्स ऑफ दोज लेग्यूमिनस प्लांट्स, गेटिंग शेल्टर फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज द फूड फ्रॉम द प्लांट, फूड और शेल्टर उसको वहाँ से मिल रहा है, और बदले में ये खुद क्या दे रहा है? प्लांट को नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द another example of the symbiotic association of the organisms of the food category. So students, this is all about the replenishment of nutrients in the soil. इस तरीके से soil के अंदर जितने भी nutrients की deficiency है, that can be fulfilled. And here our chapter number 1 of science, that is completed. So prepare it very well students. Be ready for the test. Soon it will be taken. Till then, thanks for watching.